and that is when I actually promised to myself कि अब तो कुछ करना है. मतलब this is not how this should end. What is the actual price of COGS कितना है इसका? That's when I got to understand that it is roughly around 5 to 6 times markup. नए sellers को मैं suggest यही करूँगा कि तब तक you stay out of running an e-commerce business. कंसिडरिंग आपका मार्केटिंग का इतना ब्रॉड और इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। I'll suggest that people should go on Amazon, look for best sellers, क्या बिक रहा है, कौन सी कैटेगरी बिक रही है. That is not success. आपको पैसे मिल भी जाएंगे, अगर आप शांत नहीं हो मन से तो वो सक्सेस नहीं है. हाय अनुपम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। आपने अपना टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और हम आपके ब्रांड डेकोर ट्विस्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। बट वो शुरू करने से पहले अगर आप अपने बारे में बताना चाहें, अपनी बचपन के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपने कहाँ से शुरुआत करी, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, और उसको सेगवे करते हुए कि क्या इंस्पिरेशंस थे या क्या आपके कुछ इवेंट्स हुए, क्या नीड देखी आपने जिसकी वजह से डेकोर ट्विस्ट की शुरुआत। Thank you Vaibhav bhai for having me today on this podcast. Appreciate the opportunity. Vaibhav bhai, मेरी journey थोड़ी interesting रही. I started pretty early in my life. Very few people are aware of it. I started roughly around 1999 after my father passed away due to an heart attack. I was in ninth standard at that time, and I started doing a lot of things. I took over his cyber cafe business to make both ends meet. और फिर उसके बाद PCO booth भी रन किया. I did every odd job in my life to make it more meaningful for me and for my family. फिर उस couple of years later, 3 years later, my mom passed away, and that is when I actually promised to myself कि अब तो कुछ करना है. मतलब this is not how this should end. And then as in like it has been I would say a journey till now. I basically started working with Wipro in 2006. I then co-founded a company, and with my co-founder and with the team I was able to scale that to good 100 plus people. Started in 2010. I got an opportunity to be a guest speaker on IIM Lucknow, and after that I started my marketing agency. I started practicing digital marketing from 2002. That's how it has been, and it has been a journey to cherish, and yeah, that's where I am. ट्रूली रेजिलिएटिंग। आपने पहले भी मुझे बताया है इन सब जी. के बारे में डिटेल में, और यही है कि आपकी जो स्टोरी है वो कितने ग्रेट और डिटर्मिनेशन से भरी हुई है। सो कूडोज टू दैट। और आपके कई और बिजनेस भी हैं, मुझे पता है, और हम मे भी उनके बारे में भी बात करेंगे। बट जी. डेकोर ट्विस्ट के रिलेशन में आप डेकोर ट्विस्ट ही क्यों, डेकोर एज अ कैटेगरी ही क्यों, आपने क्या Correct. देखा? So I guess वैभव भाई, अगर आप इंडिया का लैंडस्केप देखिए, you wouldn't be able to point out one big brand across a decor space. I actually bought my second house in 2019, and me and wife were decorating it. And interestingly, we went on to a couple of websites, Pepperfry, Urban Ladder, and all those. And of course, Amazon. They were basically quality issues we found. There were issues in terms of returns. So all of that were the issues, and the kind of premium I won't name, but a couple of sites were making was roughly around 5 to 6 times, because my cousin brother is into exports of these products. And then I actually checked with him what is the actual price of COGS कितना है. That's when I got to understand that it is roughly around 5 to 6 times markup. I always look at basically, let's say West, कि West में क्या चल रहा है, and there are so many brands which are basically brands which are listed on Nasdaq, and basically in terms of billions of dollars of revenue. IKEA है, Western है, CB2 है, Enthro है, there's so many of them. And then when you look at India landscape, they are not a lot of brands that you can name. So I saw that there is an opportunity to probably have a brand, and that's how Decor Twist came into existence. That's the journey, and we started focusing on, let's say, we believe Puja Ghar is in every home in India. There is basically a Puja Ghar, and basically at least once or twice in a year, people actually decorate their Puja Ghar. So that was one of the targeted, I would say, vertical that we started off with, and then we pivoted it to kitchen, where as in like
सारी फीमेल्स वुमेन जो हैं बेसिकली हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ खरीदती रहती हैं, किचन आइटम्स और स्टोरेज हुआ, ऑर्गेनाइजर हुआ, एंड देन लिविंग रूम ऑल्सो, बिकॉज एवरी 6 months or so you would like to actually decorate your living room by either a center table or a side table या टीवी कैबिनेट में कुछ रखने के लिए, और इवन योर डेस्क. सो कुछ ना कुछ आप चेंज करना चाहते हो, कुछ नया लाना चाहते हो, एंड दैट इज हाउ दीज आर द 3 verticals or the rooms of the house that we actually focus on. सो आपने आपके खुद के घर को डेकोरेट करने के लिए अपने लिए सामान खरीदने के लिए जब आपने देखा कि ये आपको अपने मतलब का उस प्राइस का वैल्यू नहीं मिल रही है, और आपने जब देखा कि वेस्ट में किस तरीके से ये ज़्यादा मार्कअप पसंद चीज़ें बिक रही है, तो आपको एक नीड आइडेंटिफाई करके आपने सोचा ये डेकोर रिलेटेड बिजनेस हम लोग शुरू करते हैं. तो बट जब आपने डिसाइड किया कि ये कुछ चीज़ें हमको देखनी चाहिए, तो आपने ये कैसे फिर डिटर्मिन किया कि सप्लायर कौन से होंगे, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, शुरुआत कैसे करी? कि अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा हो और वो भी ये कनंड्रम में हो कि मुझे ये बेचना तो है लेकिन अब मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, तो वो क्या किस तरीके से उसको वो डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? वैभव भाई जब शुरुआत करी थी तब बहुत रॉ था. आज अप्रोच बहुत डिफरेंट है, तो मैं आज की अप्रोच से बताऊंगा, बिकॉज मे बी आज जो जर्नी है वो काफी डिफरेंट है. आई सजेस्ट दैट पीपल शुड गो ऑन Amazon, लुक फॉर बेस्ट सेलर्स, क्या बिक रहा है, कौन सी कैटेगरी बिक रही है, हीलियम लो, जंगल स्काउट लो, ट्राई टू फिगर दैट आउट कि विच कैटेगरी इज डूइंग. एटलीस्ट कम से कम आपका एक SN या एक SKU एटलीस्ट कम से कम 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए आपको महीना मिनिमम लाके दे, एंड इवन मोर. क्या प्राइस पॉइंट है, किस ASP पे है, क्या साइज है, कलर है, क्या फीचर है, आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो मुझे कौन से कलर का, कौन से फीचर का, कौन सा आइटम, कितनी क्वांटिटी, पैकेजिंग कैसी रहेगी, ब्रेकेज, तो हर चीज आइडेंटिफाइड आपको पहले से रहनी चाहिए. आपको इनफैक्ट आपके कैटेगरी मैनेजर से, अगर आपके दोस्त या किसी भी ग्रुप पे चले जाए, किसी से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि यार मेरा कैटेगरी का रिटर्न क्या है, मेरा कैटेगरी का कॉस्ट क्या चलता है या कॉस्ट क्या चल रहा है, मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन इस कैटेगरी में क्या आता है, मेरा यूजुअली कॉस्ट पर क्लिक क्या चल रहा है मेरा. तो आप ये सब चीजें आइडेंटिफाई जितना क्लोजली करेंगे, जितना डेटा पॉइंट्स आपको मिल सकता है, आप उसकी बेंचमार्किंग पहले दिन से करिए बिफोर यू जीरो डाउन ऑन द कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड द प्रोडक्ट. And then you need to look at, is it a problem solving product, is it basically a seasonality product. क्योंकि जैसे जब हमने पूजा स्टार्ट किया, पूजा रूम को फोकस करते हुए, those were basically seasonal product. मतलब दिवाली पे हमने 1.25 करोड़ की सेल करी, बट अगर हम ये सोचें कि सेम प्रोडक्ट से हम बाकी के महीने भी कर लेंगे, तो जुलाई से लेके वो अक्टूबर नवंबर तक ही, दिवाली अगर लेट हो गई तो नवंबर हो गई, तो वो तभी है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, रक्षाबंधन से कुछ रहेगा. सो दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि हमने जैसे बताया आपको कि वी पाइवट इनटू किचन एंड लिविंग स्पेसेस. थॉट प्रोसेस से हमने उस चीज को देखा कि वहाँ अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं, डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट हैं, उन सब चीजों को उसकी डिमांड. जो Amazon बेस्ट सेलर लिस्ट की जो आपने बात की है वो एक बहुत ही अच्छा टूल है, जो मुझे नहीं पता कितने लोग उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन Amazon बेस्ट सेलर में कोई मेन कैटेगरीज के अंदर, सब कैटेगरीज के अंदर, सब कैटेगरीज में सेवरल कैटेगरीज होती हैं, और हर एक कैटेगरी के लिए वो 100 बेस्ट प्रोडक्ट्स, उसका टाइटल क्या है, कितनी उसकी स्टार रेटिंग है, कितने प्राइस पे बिक रहा है, उसकी फोटो रैंकिंग सब मिलता है, वो जरूर देखना चाहिए. उसके अलावा भी Amazon 2-3 लिस्ट और भी देता है, व्हाट्स हॉट, व्हाट्स न्यू, मोस्ट विश्ड फॉर, एक Amazon का लॉन्च पैड का भी एक अलग सेक्शन है. यहाँ पे ये सब चीजों को आपको देखते रहना चाहिए. और एक बार अगर आपका सेलर सेंटर, ये तो आप Amazon.in पे जाके वैसे भी चेक कर सकते हैं, किसी भी Amazon की कंट्री वेबसाइट पे जाके. और अगर आपका सेलर सेंटर खुद का अकाउंट भी हो, तो उसके अंदर भी ब्रांड एनालिटिक्स का एक पेज होता है, यहाँ पे वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है जो लोग ज्यादा तरीके से यूज नहीं करते. वह भाई आप Amazon पाई भी यूज कर सकते हो. अगर आपके पास डेटा पॉइंट आ चुका है तो मुझसे पहले कस्टमर ने क्या खरीदा, मेरे प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या खरीदा,
आप वहाँ पर बंडलिंग कर सकते हो या वो प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो लेट्स से कल मिल मान लीजिए किसी ने दिया परचेज किया, उसके पहले उसने बत्ती परचेज करी थी या उसके बाद माचिस परचेज करी या कोई माला परचेज करी, यू कैन बंडल ऑल ऑफ इट एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर फॉर इट। तो बहुत सारे इंसाइट जो हैं वो ऑलरेडी हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एक्चुअली, इनफैक्ट मैं बोलूँगा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे भी जाइए, गूगल ट्रांसपेरेंसी में जाइए, फिगर आउट व्हाट सम ऑफ द ब्रांड्स आर डूइंग, किस तरीके के उनके एड्स हैं। मान लीजिए वो प्रोडक्ट का ही एड है, इट जस्ट शोइंग द प्रोडक्ट है, या वो बेसिकली किसी तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम सोल्यूशन एड बना के रखा हुआ है, किस तरीके से कौन सा क्रिएटिव टाइप वर्क कर रहा है, क्रिएटिव थीम वर्क कर रही है, मतलब एड टाइप क्रिएटिव थीम आपकी क्या वर्क कर रही है। कमेंट्स पढ़िए उनके कि उनके कमेंट्स में क्या बोल रहे हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट तो समझ में आया, लेकिन आपने जब कमेंट्स पढ़ा, ब्रिकरेज बहुत है इसके अंदर, आपको वो कमेंट्स में पता चले, नेगेटिव कमेंट्स मिले, तो हर चीज को जितना हो सके उतना आइडेंटिफाई करिए और लेट्स से P1 P2 P3 करके अपने प्रोडक्ट्स को, कैटेगरी को, सब कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते चले जाइए। एब्सोल्युटली। ये जो जी आपने रिव्यूज को पढ़ने की, कस्टमर से इंटरेक्ट करने की, चाहे वो जी अमेजोन पे हो, शॉपिफाई का आपकी खुद की वेबसाइट से हो, करेक्ट कस्टमर का क्या इनपुट है और आपके खुद के प्रोडक्ट का भी, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट का भी, कि लोग आपके प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं तो उसकी क्या तारीफ हो रही है, आपके प्रोडक्ट की क्या बुराई हो रही है, किस चीज पे आप करेक्ट। इम्प्रूव कर सकते हैं, वो करना बहुत जरूरी होता है। तो आप इसी के बारे में, जैसे आपने बताया, तो इसी के बारे में कुछ ऐसा कोई आपके कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस हो जहाँ पे आपने कस्टमर का फीडबैक लिया हो और प्रोडक्ट चेंज हुआ और उससे आपने फिर इमीडिएट इम्पैक्ट देखा हो अपने बिजनेस में? वैभव भाई, पुराने वाले क्वेश्चन में और एडिशन कर सकते हैं कि आप जब बेस्ट सेलर देखते हो तो आपको प्राइस पॉइंट का भी पता चल जाता है, बिकॉज आई गेस वी मिस्ड ऑन दैट पार्ट। सो प्राइस पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपका ये कैटेगरी किस प्राइस पॉइंट पे है। जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करिए, एटलीस्ट 3 प्राइस पॉइंट के लिए लॉन्च करिए, हाई, मीडियम और लो प्राइस पॉइंट के लिए। आप देखिए कि कहाँ पर क्या चीज बिक रही है और क्या वॉल्यूम्स बिक रहे हैं, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि मतलब मेरा कौन सा ASP वाला प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। एक तो वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा। नाउ आपका जो अभी क्वेश्चन कि आपने कभी कस्टमर के रिव्यूज के साथ कुछ प्रोडक्ट में आपने अपडेट किया हो, हम लोग के पास होली बुक स्टैंड था। हम लोग एक प्रोडक्ट था जो हम लोगों ने डिजाइन करा था, डेवलप किया। उस प्रोडक्ट के साथ हमने उसमें एक बेसिकली स्टोरेज का उसमें क्रिएट किया। साथ में हमने उसके ऊपर बुकमार्क्स जो हैं वो ब्रास की जाली वाले इंट्रोड्यूस किए। सो वी एक्चुअली बंडल दैट प्रोडक्ट एंड इट डिड वेरी वेल। कॉर्पोरेट में भी, शादियों में भी दैट प्रोडक्ट डिड वेरी वेल फॉर अस। सो दैट इज वन ऑफ आवर, आई विल से वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली वर्कड ऑन इट एंड वो प्रोडक्ट ने काफी अच्छा किया। ऑन प्राइसिंग ऑल्सो। और अमेजोन में अभी तो रिसेंटली आपके कितने यूनिट्स पिछले महीने में किसी भी प्रोडक्ट के करेक्ट, वो इनपुट भी आता है, तो आपको एक वॉल्यूम का अंदाजा भी लगता है उस चीज। एग्जैक्टली। सो सो वैभव भाई, जब आपने ये वाला बात बोली तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप मतलब 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, मान लो आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो आप यहाँ वहां पर जाके ये देख सकते हो कि मान लो मेरी ये कैटेगरी, अब कोई एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी कैटेगरी लिमिटेड है। मान लो वो एक टिफिन बॉक्स बना रहा है। टिफिन बॉक्स में मालूम है कि इस कलर का टिफिन बॉक्स, इस टाइप का या मटेरियल का टिफिन बॉक्स, मान लो प्लास्टिक है, स्टील है, किस तरीके का टिफिन बॉक्स बिक रहा है और उसकी क्या वॉल्यूम है। तो मान लीजिए एक स्टील का टिफिन बॉक्स पे वॉल से ऊपर मान लीजिए केवल और केवल प्लास्टिक का बिक रहा था, लेकिन हमने जब नीचे गए और 5th के बाद 6th नंबर पे मान लीजिए एक स्टील का आया, तो पता चला अगर मैं स्टील का लॉन्च करूंगा, इस ASP पे लॉन्च करूंगा, ये उसके फीचर होंगे, उसका कलर होगा, तो बस केवल और केवल मैं मान लीजिए इसके 200 पीस ही बेच सकता हूँ। सो दैट इज द मैक्सिमम दैट आई कैन डू। ठीक है, तो पहले से एक आइडिया रहेगा कि मुझे कितनी इन्वेंट्री लानी है, मुझे मालूम है मैं इस SN के ऊपर कितना कर सकता हूँ। अब आप ट्राई कर सकते हो कि मैं इसकी जगह 3 या 4 अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने की कोशिश करूंगा, BSR में अच्छी पोजीशन लाने की कोशिश करूंगा। दैट्स समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। एब्सोल्युटली। और जी एक लास्ट पॉइंट इस पे प्राइसिंग पे, जी बिफोर वी मूव है, कि जी प्राइसिंग रिलेटेड डिटर्मिनेशन की आप मोस्ट जो सेलर्स होते हैं वो हम्म एक कॉस्ट प्लस अप्रोच रखते हैं प्राइसिंग के लिए, हम्म कि अगर मुझे 100 रुपए का पड़ रहा है तो मैं अगर 300 में बेच दूंगा तो इतना करेक्ट बच जाएगा, मुझे इतना बच जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्राइस आपके लिए, कस्टमर के लिए काम करे, क्योंकि जो कीवर्ड आपके लिए सबसे रेलेवेंट है, उस कीवर्ड पे जो सबसे अच्छी लिस्टिंग है, जिसपे अमेजोन का टैग या अमेजोन चॉइस है, सबसे ज्यादा रेटिंग, रिव्यूज और उसकी क्वांटिटी बिक रही है, वो 250 का बिक रहा है या वो 200 का बिक रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपका माल 300 में नहीं बिकेगा। और स्पेशली जब आप नई ब्रांड है, छोटे ब्रांड है, तो जो ओपनिंग प्राइस पॉइंट, जो OPP भी हम लोग बोलते हैं, उसको भी आपको बेस्ट सेलर से थोड़ा सा नीचे रखना पड़ता है। आपको उसको मार्केटिंग पुश भी देना पड़ता है, तभी आपको वो एक रेलेवेंस और
विजिबिलिटी मिलेगी तब आपका प्रोडक्ट चलेगा। वैभव भाई, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैटेगरी के बेंचमार्क्स को जानिए। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि देखिए, मान लीजिए जो बेस्ट सेलर है उसको मान लीजिए रिबेट मिली हुई है, ठीक है, मान लीजिए 18% आपका लग रही थी कमीशन, आपको 50% रिबेट मिली हुई है। अब वो 50% तो उसने वैसे ही, जो भी उसकी रिबेट थी, उसने प्राइस पॉइंट वैसे भी उसका कम कर लिया, तो आपको लगेगा यार कि इसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी हो रही है इसीलिए इसके प्राइस पॉइंट कम है। सो आपको धीमे धीमे पता चला वो उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, तो स्टेप प्रोग्राम में वो काफी ज्यादा उसको एडवांटेज मिल रहे हैं, ठीक है, तो या पता चला उसका मटेरियल डिफरेंट है तो उसके ब्रेकरेज कम है, या वो ऑलरेडी रन कर रहा है तो उसका ऑर्गेनिक शेयर काफी हाई है, उसको एड स्पेंड कम करना पड़ रहा है। सो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जो कि शायद आप केवल ऊपर से देखेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा, जी। वो आप जब करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या है। लेकिन केवल उससे इंस्पायर होइए, उस डेटा को देखिए और कुछ ना कुछ यूनिकनेस लाने की कोशिश करिए कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, मैं इसमें कुछ नया फीचर लेके आऊंगा, जी। तभी आप उससे बेटर कर पाओगे। आप 50 रुपए प्रीमियम भी चार्ज कर पाओगे, लेकिन अगर वो थॉट प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोडक्ट लाने का थॉट प्रोसेस है, तो हो सकता है आप प्रीमियम भी नहीं चार्ज कर पाओगे और कंपटीशन करना भी थोड़ा मुश्किल हो। बिल्कुल, और आपने डेटा की बात की तो हम डेटा पे और बात करेंगे, लेकिन उससे जी। पहले मेरा एक और पॉइंट था कि ये तो आप कई समय से, अब आप हम्म। ऑनलाइन एक सेलर हैं, आप गुजरे हैं इन सब प्रॉब्लम से, आपने हम्म। फिगर आउट किया है। हम्म। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो नए सेलर्स भी होते हैं, ये स्टेप प्रोग्राम क्या होता है, क्या मैं उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं, हम क्या इंडिकेटिव परफॉर्मेंस में क्या हमारा बेटर हम लोग करेंगे तो हमारे को कम रिटर्न्स पे कम मिलेगा, हमारा पैसा जल्दी वापस आएगा, ये सब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते होते कुछ समय लगता है। आपने अकाउंट मैनेजर की बात करी थी कुछ टाइम पहले, नए ब्रांड्स को तो पता ही नहीं होता उनका मैनेजर कौन है, उनका मार्केटिंग मैनेजर कौन है, पाए का एक्सेस छोटी ब्रांड्स को, नई ब्रांड्स को नहीं करेक्ट। मिलता है। सो अगर कोई एक नई छोटी ब्रांड है और उनको ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनके पास में क्या एवेन्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर मिलने के? क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या कुछ और सेलर कम्युनिटीज होती हैं? कहाँ पर किससे वो बात करके अपने क्वेश्चंस का कुछ हल निकाल सकते वह भाई, ऑनेस्टली मेरा काफ़ी एक जो एक्सपीरियंस था वो गूगल और फेसबुक मार्केटिंग में था, मार्केट प्लेसेस में थोड़ा लिमिटेड था, ठीक है। और जब मैंने मार्केट प्लेसेस पे अपने एक्सपीरियंस को ग्रो किया, नाउ आई बिलीव मेरा एक काफ़ी डिसेंट एक्सपीरियंस है, एंड नॉट जस्ट माई ब्रांड बट मल्टीपल ब्रांड्स को स्केल कर चुके हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हमें भी काफ़ी समय लगा मिलने में, पता चलने में। इनफैक्ट अगर आप लेट्स से अकाउंट मैनेजमेंट की फीस को ही अगर आप ढूंढना जाओगे कि मुझे कितनी फीस लग रही है, वही आपको पता चलना, या कॉन्सेप्ट की आई नीड टू लुक एट पर ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी, कि मेरा पर ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सब चीजें आपने, ठीक है, आपने बना लिया आपका यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह, आपकी पर ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है, मैं किस प्रोडक्ट को आपने उनको मान लीजिए कैटेगराइज किया कि 1 to 5, 5 to 10 ये, 10 to 15 ये, या मान लीजिए आपने उनको कैटेगराइज किया मेरे बेस्ट सेलर्स हैं, मेरे राइजिंग स्टार्स हैं, मेरे स्लो मूवर्स हैं, आप किस तरीके से उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बोला ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? आई गेस मेरे ख्याल से शायद ये पॉडकास्ट हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम उन सारे सेलर्स को दे पाए, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेट दिस इन्फॉर्मेशन। काफी अच्छा मेरा नेटवर्क है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन में काफी समय लगा गैदर करने में और एक्सपीरियंस करने में भी काफी समय लगा। सो आई बिलीव एट यू कैन, द बेस्ट थिंग इज टू रीच आउट टू एक्सपर्ट्स, रीच आउट टू कंसल्टेंट्स, रीच आउट टू व्हाट्सएप ग्रुप्स, आस्क क्वेश्चन ओवर देयर, प्रोब एज मच एज पॉसिबल, एंड कहीं अगर आंसर ना मिले तो हम लोग अवेलेबल, आप हमें ढूंढिए और हमें मैसेज करिए, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और जी। अब ये एक बात बताइए, डेटा की पिछले हमने बात करी, सो डेटा और एनालिटिक्स का क्या महत्व है डिसीजन मेकिंग में आपके लिए? और आपने, मुझे याद है, लिंक्डइन पे एक बहुत लंबा पोस्ट डाला था जिसके बाद मैंने आपको रीच आउट भी किया। आपने सारे वो मैट्रिक्स आई नो। जो आप इंटरनली ट्रैक करते हो, और आई एम श्योर कि मोस्ट ब्रांड्स आउट देयर वो उतना माइन्यूट लेवल पे डेटा करेक्ट। नहीं करते हैं। सो आई नो आपका आंसर क्या होगा, बट फिर भी लिसनर्स के लिए कि डेटा और एनालिटिक्स का डिसीजन मेकिंग में क्या श्योर। रोल रहता है? ठीक है वैभव भाई, देखिए डेटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर अभी तक आप पूरी कॉन्वर्जेशन को देखिएगा, सो समवेयर और द अदर इट इज डेटा, और आप उसको स्प्रेडशीट पे डाल सकते हो। अगर मैंने बोला कि अमेजोन के बेस्ट सेलर्स को देखिए, या मैंने बोला फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाइए और देखिए कि सबसे पुराना एड किसका चल रहा है, या गूगल ट्रांसपेरेंसी में जाके देखिए कि किसके एड चल रहे हैं, कितने पुराने एड्स हैं, क्या जा रहा है, अब वो कलेक्शन पेज पे जा रहा है, वो बेसिकली प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है, वो होम पेज पे जा रहा है, कुछ वेबसाइट को ट्रैक
करिए जो बेसिकली केवल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते रहते हैं, जी। तो आपको पता चल जाएगा नया प्रोडक्ट कौन सा आने वाला है। कुछ सेलर्स को ट्रैक करते रहिए कि उनका नया लॉन्च क्या आया, आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक तरीके से ये सारी चीजें डेटा ही, अगर आप बता रहे हैं कि ये आइटम है, फीचर है, ये कलर है, ये वेट है, इसके लेट्स से फॉर एग्जांपल उसके फंक्शनैलिटी ये होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी 3 in 1 होना चाहिए, मल्टीपर्पस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये सारा डेटा है कहीं ना। अब आते हैं आपकी बाकी डेटा एनालिटिक्स वाली की। मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस बिना डेटा के ऑपरेट नहीं कर सकता आज के समय में, एटलीस्ट सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता बिना डेटा को देखे हुए। बहुत सारे डेटा हैं, जैसे आप कॉस्ट पर इंक्रीमेंटल रीच, क्या आपका न्यू कस्टमर एक्विजिशन का क्या चल रहा है, आपका रिटर्निंग कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट क्या चल रही है, आपका उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या चल रहा है, रिटर्निंग का एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या चल रहा है, लाइफ टाइम वैल्यू क्या चल रही है, आपका बेसिकली टाइम ऑफ द डे ऑफ द वीक क्या आपका ये वर्क करता है। फर्स्ट 15 डेज में परचेजेस आती हैं, लास्ट 15 डेज में परचेजेस आती हैं मंथ में, सीजनैलिटी क्या चल रही है, किस समय ज्यादा परचेजेस आती हैं, किस स्टेट से, किस पिन कोड से आती है, इसको रिटर्न का भी डेटा देख सकते। आपका कस्टमर सर्विस की बात करें तो एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या चल रहा है, अगर हम बात करें किस प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ, किसकी क्वेरी ज्यादा है, उसको भी अगर आप लेबल कर सकते हैं और मल्टीपल लेबल्स बना सकते हैं, सब लेबल बना सकते हैं कि अच्छा इसमें डैमेज इसमें आता है, रीजन ऑफ डैमेज ये आ रहा है, या आप इस प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं, मान लीजिए डिलीवरी से इस प्रोडक्ट को आप शिप करते हैं ब्लू डार्ट से, या इस प्रोडक्ट को आप शिप करते हैं DTDC से, तो उनके रिटर्न रेट क्या। तो हर जगह बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि एनालाइज करने पड़ेंगे आपको टू हैव अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। मान लीजिए रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न जो आ रहा है वो आपने उसके ऊपर क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज आपका क्या चल रहा है, आपका बेसिकली रिटर्न किस चैनल से आ रहा है, किस लॉजिस्टिक पार्टनर से ज्यादा रिटर्न आ रहा है, आपको ये सारा डेटा पॉइंट मालूम होना चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस को रन करने। जी बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट हैं, करीब 40 से 60 मैं बोल सकता हूँ ऑन हायर साइड KPIs और मेट्रिसेस होते हैं जिनको आपको ट्रैक करना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ब्रांड शेयर देखना चाहिए, को अपना कैटेगरी शेयर देखना चाहिए कि आप कितने परसेंटेज हैं। तो अगर आपको लगता जी। है उस कैटेगरी में आप विनर बनना चाहते हैं तो आप मल्टीपल और SKUs लॉन्च करेंगे। अगर आपका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं रीच किया है आपने, तो आप और प्रोडक्ट्स लॉन्च करिए उस कैटेगरी में एक शेयर बिल्ड करने के लिए। सो ऐसे बहुत सारे हैं वैभव भाई, आपको ये सारी KPIs को देखना बहुत जरूरी है। और जी आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि सब कुछ डेटा ही है। एक करेक्ट। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ऑनलाइन सेलिंग के जी बिजनेस में जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड है, एक तो वो है कि सप्लायर से माल आपके पास आया, वेयर हाउस में गया, फिर कस्टमर के पास में गया, उसके अलावा तो हर एक चीज डेटा ही है करेक्ट। कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको एनालाइज करना ही आपको। को वैभव भाई एक और पॉइंट बताता हूँ, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हमें डेटा में बहुत हेल्प मिली। पहले हमारा अमेजोन का सेलर सेंट्रल का रेवेन्यू था फ्लक्चुएट करता था, एंड इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू एक्चुअली प्लान इन्वेंट्री वेरी वेल। दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज दैट वी फेस्ड अ लॉट इन आवर बिजनेस। इन्वेंट्री प्लान को प्लान करने के लिए हमने मान लीजिए अपने नोएडा ऑफिस को मदर हब बनाया, और हमने बाकी जितने भी हमारे 7 स्टेट्स में जितने भी FBA हैं हमारे, हमने उनको बेसिकली डार्क स्टोर तरीके से ट्रीट करना शुरू किया। सबकी इन्वेंट्री प्लानिंग हमने इंडिविजुअल लेवल पे करनी शुरू करी, कौन सी कैटेगरी, कौन सा SKUs, कौन सा SN क्या ऑपरेट करता है वहां पर, उसकी सीजनैलिटी क्या चल रही है, एंड दैट इज व्हेन कि मान लो ये प्रोडक्ट की बैंगलोर के अंदर इसकी इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड प्लानिंग दिस। हम लोग की इन्वेंट्री की जो इश्यूज थे वो डेटा से रिजॉल्व होने शुरू हुए। सो अगर मान लीजिए हमारे केस में जहाँ हमारा बिजनेस ऐसा है जहाँ पर पैकेजिंग के बहुत इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज वेरी टाइप ऑफ पैकेजिंग, वेरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उनके डायमेंशन, वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत डिफरेंट है। उस केस में डेटा के बिना आप पैकेजिंग डिसाइड नहीं कर सकते। लेट्स से 499 की आपने LWH 2-3 तरीके के प्लान किए जिसमें आपके प्रोडक्ट कवर हो जाएं, 999 ग्राम्स में आपने प्लान किए, 1499 ग्राम्स में प्लान किए, 199 ग्राम्स में, 1999 ग्राम्स में आपने प्लान किए। तो आपने मल्टीपल ग्राम्स में जाके जब आपने प्लान किया उसको मल्टीपल पैकेजिंग, तो होगा आपके पास निकल के आएंगे कि हो सकता है 4-5 डब्बे ही आपके निकले जो कि 300-400 SKUs, 200 SKUs आपके जो हैं वो आपको आपकी पैकेजिंग फिक्स कर पाए। तो ये सब काफी ऐसे इश्यूज हैं जो हर सेलर फेस करता होगा, और वो बिना डेटा पॉइंट्स के नहीं रिजॉल्व हो सकते। एब्सोल्युटली। और यही मेरा आपसे क्वेश्चन भी था नेक्स्ट, जो आपने जी ऑलरेडी आंसर की। ऐसा कोई और चैलेंज रहा आपके बिजनेस
बिजनेस में जो आपको आपने इन्वेंट्री के एग्जांपल दिया, या कोई और भी चैलेंज रहा जो आपको स्केल अप करने में रुकावट पैदा कर रहा था, डेटा के थ्रू या वैसे ही किसी और चीज के भी थ्रू, आपने उसको ओवरकम किया, कैसे किया? और अगर कोई नए सेलर भी जो हैं जो ये सुन रहे हैं, सो उनके लिए आपकी 2 क्वेश्चंस का पार्ट है कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी, और ऐसे कोई सबसे बड़ा चैलेंज आपका इसके अलावा अगर कोई था तो आप बताना चाहें तो। वैभव भाई, आई गेस जो भी सेलर सुन भी रहे होंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप ई कॉमर्स शुरू कर रहे हो ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी दी की। टॉप लाइन वगैरह के, टॉप लाइन का कोई लॉजिक नहीं है। इट हैज टू बी अ सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंडिंग आती है आप लोगों के पास भी, फिर आप उस चीज को देखेंगे कि यार टॉप लाइन पे फोकस करते हैं, बॉटम लाइन पे फोकस नहीं करते। अपना जब भी आप MIS देखिए, एक तो पर वीक के बेसिस पे अपना डेटा देखिए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो बहुत जरूरी है। पर ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी अमेजोन कर रहे हैं तो अपना सेटलमेंट जरूर चेक करिए। कभी कभार नोट चेंज हो जाते हैं, जो बेसिकली जो कमीशन चार्ज होना था वो ज्यादा चार्ज होने लगता है। आपको ये सब चीजें रेगुलर ट्रैक करनी चाहिए कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मिस मत करिए। पता चला महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, उसके बाद जब आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन करी तो आपको लॉस दिखाई दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए, आपको बस उसकी QC करनी है वीकली बेसिस पे। अच्छा, मेरा कॉक्स कितना था, तो मतलब मेरा CM1 कितना आया, मैंने कितना एड स्पेंड किया, मेरा CM2 कितना आ रहा है, मेरा लॉजिस्टिक्स का कितना था, मेरा लॉजिस्टिक्स का ये KPI मीट हुई या नहीं हुई। चला, लॉजिस्टिक्स आपकी मान लीजिए 12% होनी चाहिए थी, आपका लॉजिस्टिक्स उस बार 14% गया, 15% गया, तो आपको पता चलना चाहिए क्यों हुआ ये 15% क्यों गया, किस ऑर्डर पे गया, क्यों हुआ ऐसा। और जब भी अपने कैलकुलेटर्स बनाइए, वो रिटर्न जो होता है, बहुत सारे लोग कैलकुलेटर बनाते हैं, उसमें शिपिंग चार्जेस लिख देते हैं, विच इज 1 वे। आपको 2 वे शिपिंग चार्जेस रिटर्न के लिखने चाहिए, बिकॉज जब रिटर्न आता है तो वो और कॉस्टली आता है। तो कैंसिलेशन को पहले रखिए कि 100 ऑर्डर आए, मेरे 2 कैंसिलेशन है, फिर मैंने 98% मैंने ऑर्डर्स शिप किए, 98% में मान लीजिए मेरे 12% की मेरी मान लीजिए RTO है, तो आपका कितना परसेंट डिलीवरी आई, जो RTO हुए उनके ऊपर क्या चार्जेस आपको पड़े। अब वो आए तो वो किस कंडीशन में आए, वो RTO है तो मान लीजिए वो गुड कंडीशन में है, सेमी गुड कंडीशन में है। सेमी गुड कंडीशन का मतलब हुआ क्या जो पैकेजिंग है वो इंटैक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट हो सकता है उसको चिप ऑफ हो जाए लेकिन वो चल सकता है, मान लीजिए आप उसको एक रीसेल मार्केट में बेच सकते हैं, कहीं ले जाके और दुकान लगा के बेच सकते हैं। क्या मान लीजिए कंप्लीट लॉस हुआ, अब उसके ऊपर क्लेम सेटलमेंट कितना हुआ, आपको पता चला क्लेम आपने 100 क्लेम फाइल किए, आपको 70 ही मिले क्लेम, उसकी वैल्यू क्या मिली, पता चला आपको वहां पर लॉस हो रहा है। सो ये सब चीजें आप एक एक प्रोडक्ट का, अच्छा उसके बाद आपने बेसिकली GST पे करी, आपको इनकम टैक्स लगा, सो इन सब चीजों के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी कितनी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी QC वीकली बेसिस पे होती रहनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, CM1, CM2, CM3 आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट। आज मेरा इंटरनेट का बिल बढ़ गया या मेरी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज हो गई महीने भर में, आपको इन सब चीजों का, क्योंकि मान लीजिए अब गर्मियों का सीजन है, नॉर्थ में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी ही है, आपको मालूम होना चाहिए कि किस महीने में मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका बिल 10,000 की जगह 18,000 का बिल आने वाला है। तो आप जब अपनी कैलकुलेशंस करोगे तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए हाउ मच प्रॉफिटेबिलिटी यू नीड एट द मंथ एंड टू ईदर ब्रेक इवन और वट एवर योर गोल्स आर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ योर बिजनेस, अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो CM1, CM2, CM3 की भी आपने बात करी है, कई नए सेलर्स को इन एब्रीविएशन से वो लोग फेमिलियर नहीं होते हैं, तो और बट ई कॉमर्स बिजनेस, क्विक कॉमर्स, किसी के लिए भी ये सब एब्रीविएशन जितना जल्दी वो सीख जाए, जितना जल्दी वो, अगर वो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो उनको अपने आप को कस्टम करना ही पड़ेगा वो इन चीज़ों से, ताकि वो पूरी करेक्ट। पकड़ बना पाए अपने बिजनेस पे। नहीं, आपने एब्सोल्युटली। मुझसे पूछा था कि नए सेलर्स को फीडबैक क्या रहेगा, जी मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। जी अ, मेरा नए सेलर्स को या जो भी शुरुआत कर रहा है, grass is always greener on the other side, and we feel that the company that we are working with, or जी probably the client that we are serving, or maybe someone got funded, or we always look that the grass is greener on the other side. उस जब तक आप किसी चीज के लिए खुद से बहुत पैशनेट ना हो, जब तक आप कुछ उस कैटेगरी में, उस सब कैटेगरी में या प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हो, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि तब तक यू स्टे आउट ऑफ रनिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस, बिकॉज यू शुड बी वेरी मच पैशनेट अबाउट, एंड आप कुछ USP लेके आ रहे हो। USP हो सकता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन बी मार्केटिंग, बट इट कैन बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यू आर एन इन्फ्लुएंसर योरसेल्फ। तो आप अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या ये ब्रांड लॉन्च कर रहे हो,
where there is certain amount of edge that you already have when you are starting. अगर आपके पास इस तरीके की edge नहीं है और अगर आप शुरू करना चाहते हो, there is a lot of competition that you will face from such people who might have 1, 2 or probably 3 of these things with them itself. तो हो सकता है कि उनकी टीम में प्रोडक्ट डेवलपर भी हो, मतलब जो प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करे, डेवलप भी करे, हो सकता है वो खुद मैन्युफैक्चरर भी हों, जो प्राइस पे वो इंपोर्ट कर पाएँ, आप उस प्राइस पे ना इंपोर्ट कर पाओ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंपोर्ट में भी, जो कि मैं कह नहीं सकता, बट आप किस तरीके से इंपोर्ट भी कर पा रहे हो, वो भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो आपकी स्किल्स अलाइन्ड होनी चाहिए आपके बिज़नेस से, और वो कहीं न कहीं एज या यूएसपी होनी चाहिए। बिना उसके ई-कॉमर्स ब्रांड ओपन करने का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी। 100% बिल्कुल सही जी। बोला आपने। और इस पॉइंट पे मार्केटिंग का आपने मेंशन किया, और आपने ये भी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप और भी ब्रांड के संग काम करते हैं। जी, गूगल और फेसबुक पे पहले से ही आपका एक एक्सपर्टीज थी, और करेक्ट। मार्केटिंग पे आपने एक्सपर्टीज क्रिएट करी। आपका एक और बिजनेस भी है, गेट मी रैंक। सो जी, एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मार्केटिंग डे बाय डे चैलेंजिंग होता जा रहा है, करेक्ट, इसी जो है वो बढ़ते जा रहा है। करेक्ट, मेटा पे रवास लाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही कम लोग हैं जो एक अच्छा रवास लेके आ पाते हैं। करेक्ट, अमेजोन पे जहाँ पे अच्छा रवास आ सकता है, वहाँ पे भी लोग बहुत वेस्टफुल स्पेंडिंग करते हैं। करेक्ट। कंसिडरिंग आपका मार्केटिंग का इतना ब्रॉड और इतना जी। वास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि हुँ, नए ब्रांड्स या यंग ब्रांड जिनके पास टीम नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, वो हुँ। किस तरीके सोचें, या एजेंसी के संग शुरुआत से काम करना चाहिए, या इन हाउस कोई रखना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कंसिडरिंग आप खुद एक एजेंसी रन करते हैं, बट स्टिल आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ सेलर? सो वैभव भाई, अगर आप मार्केटिंग को देखिए, बिकॉज़ आपको परफ़ॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी। देखिए, जिन लोगों के लिए परफ़ॉर्मेंस नहीं वर्क करती है, होता क्या है कि मान लीजिए एक सर्टेन चीज़ की डिमांड है। 95% और 5% रूल आता है यहाँ पर। 95% ऑफ द पीपल एट दिस मोमेंट वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट। ओनली 5% ऑफ द पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट एट दिस मोमेंट। इसके अंदर आपके पास आपको डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी अपनी ब्रांड के बारे में, वेयर whenever they actually are thinking about buying this product, they can get onto your website or they can get onto Amazon, type the product and buy from you. तो परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जब तक डिमांड नहीं, तब तक आप परफॉर्मेंस, आपको वो 95% लोगों को भी केवल 5% लोगों के बेसिस पे आप सोच रहे हो कि मैं बस उस डिमांड को मैंने, आप एक समय बाद आपको कंटिन्यूसली डिमांड जनरेट करते रहनी पड़ेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फेसबुक करिए, चाहे बेसिकली आपने कोई एक यूनिक प्रोडक्ट अमेज़न पे लॉन्च कर रखा हो, अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है जो यूनिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डिमांड जनरेशन। इवन इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट, आपको डिमांड जनरेट करनी चाहिए, या आपका क्रिएटिव थीम आपकी ऐसी होनी चाहिए, जो कि परफॉर्मेंस में जिसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स बोलते हैं, कि आप ऐड अगर कोई बंदा देखे, आपका जो क्लाइंट है वो देखे, तो वो उसको देख के परचेज़ कर पाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन था कि एजेंसी के साथ काम करना चाहिए इनिशियल लेवल्स पे। मेरे ख्याल से अगर आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप करिए, बट आप उनसे उनके केआरएज़, उनके केपीआईज़, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपको कैटेगरी मैनेजर से पूछना चाहिए कि अच्छा, आप मुझे और विजिबिलिटी कैसे दोगे? अच्छा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अमेज़न के टैग करवाओ, मतलब टैग करो तो मुझे वहाँ से विजिबिलिटी मिले। तो आप जैसे किसी भी बिज़नेस को करते हो और रिवर्स करने की कोशिश करते हो, वैसे ही आप जब भी अपनी एजेंसी के साथ भी जाओ, तो आप उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछो कि अच्छा ये क्यों? ये क्यों नहीं? अच्छा इट वर्क्ड, अच्छा व्हाई इट वर्क्ड? अच्छा व्हाई इट डिड नॉट वर्क? तो आप खुद भी नॉलेजेबल होते रहोगे कि ये क्यों वर्क कर रहा है। मान लीजिए आपको आज 5 का ROAS आ रहा है, बट क्यों आ रहा है आपको 5 का ROAS? अगर आप बस केवल खुश हैं कि आपको 5 का ROAS आ रहा है, तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि कल जब 2 का ROAS आ रहा है, सो यू शुड आइडेंटिफाई कि अच्छा, मेरा प्रोडक्ट था वो आउट ऑफ स्टॉक चल, ये मेरा कन्वर्जन रेट वो हो गया, या मान लीजिए मेरा वन क्लिक चेकआउट उससे कुछ हो रहा था, या मैं कोई डिस्काउंट दे रहा, या ट्रैफिक कहाँ से आ रहा था, ऑर्गेनिक पोजीशन से आप ट्रैफिक आ रहा था, सो फ्रॉम वेयर दैट ट्रैफिक वाज कमिंग एंड दैट वाज कन्वर्टिंग, यू हैव नो आइडिया। सो आपको वो सब चीज़ें जानते रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, एब्सोल्युटली। आई थिंक एक और पॉडकास्ट आपके संग करना होगा सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे, जी, और रिलेटेड टू ई कॉमर्स अच्छा, ऑन मेटा
and on marketplaces, because जी, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, दोनों का तरीका बहुत करेक्ट। different होता है, दोनों के जो पैनल्स हैं, जो इंटरफेसेस हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। सो करेक्ट। आपके साथ में एक और प्रॉब्ली हम लोग एक और पॉडकास्ट करेंगे ओनली ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। श्योर वैभव भाई, जब आपको ठीक लगे और आपके किसी भी ऑडियंस को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सो यस। अनुपम भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप हम्म। व्हाट इसके आपका भी क्या प्लान है, क्या गोल्स हैं, और उन चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आप एनवसाज कर रहे हो कि आएंगे, और उनके बारे में आपने क्या प्लान बनाया ऑलरेडी? Weber Bhai, our plan is to get cash flow so that we can actually launch more categories and more new products and scale. That is what we're looking at. We're trying to raise funds at the moment and trying to actually scale the business. We feel what is very important is owning your own distribution channel, be it through a retail store. That's something that we feel as soon as we raise a fund, we will try to actually have our own retail store. So this can be a feedback that can be taken by a lot of people who are watching this, that owning a distribution is very very important. आप भले ही Amazon पे बेचो, Facebook और Instagram के थ्रू बेचो, Google के थ्रू बेचो, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका खुद का gives you a lot of advantage. और अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, आपका स्प्लिट, आर यू मार्केट प्लेस फर्स्ट और शॉपिफाई फर्स्ट, या ऑफलाइन में आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स करे हैं? So we are majorly marketplace first, then Shopify, and that's when it is B2B through basically people who are interested in buying in bulk with us for some or the other festival or occasion. एंड फंडिंग रिलेटेड चैलेंजेस, क्योंकि सभी फाउंडर्स को एक ये रहता है कि हमको कभी ना कभी फंडिंग के लिए जाना ही है, तो Correct. उसके लिए कोई एडवाइस आपके लिए कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, व्हाट थिंग्स टू कीप इन माइंड? I'll suggest कि जब तक फंडिंग की मतलब आप जब तक फंडिंग से दूर रह सकते हो तब तक उससे दूर रहो, और फंडिंग के भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं। फंडिंग को बेसिकली एक ग्रोथ मान के चलो, कि अगर मैं फंडिंग ले रहा हूँ तो मान लीजिए मैं 5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा हूँ और मैंने अगर फंड उठा ली तो मैं इस फंड से 12 करोड़ का रेवेन्यू कर लूँगा। इट शुड नॉट बी दैट यू नीड फंड फॉर सस्टेनेंस ऑफ द बिजनेस, यू नीड टू हैव फंड्स टू वाइल स्केलिंग द बिजनेस। तो आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है फंड्स को पिक करने की, कि आप किस समय फंड पिक कर रहे हो, और फंड जब आ भी जाएं तो केवल टॉप लाइन आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपका बॉटम लाइन फोकस ज़्यादा होना चाहिए। उस समय तो और ज़्यादा होना चाहिए कि आप केवल बॉटम लाइन के ऊपर फोकस करो। डोंट गेट कैरिड अवे कि यार फंडिंग हो चुकी है तो अब टॉप लाइन के ऊपर फोकस करना है। स्लो एंड स्टडी, ट्राई टू एक्चुअली सी कि आपका कैटेगरी शेयर ग्रो करता रहे। आप उसको मंथ ऑन मंथ देखते हो या ईयर ऑन ईयर देखते हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो, वो आपकी चॉइस है, बट आप अपनी कैटेगरी के लीडर बनो और मल्टीपल एसेंस के साथ उसमें लीड करो, या मल्टीपल एसक्यूज के साथ उसमें लीड करो। वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फंडिंग के बाद। आपका ब्रांड बने, पैकेजिंग के ऊपर काम करो, आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करो, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करो, सेलिब्रिटीज़ को लेके आओ। दैट शुड बी दी एडवांटेज, और सबकी आरओआई आपको मालूम होनी चाहिए कि इससे मेरी आरओआई ये निकलेगी। टिल द टाइम यू डोंट नो दी आरओआई, जस्ट थिंकिंग अबाउट फंडिंग इज नॉट गोना बी ऑफ ग्रेट हेल्प। यू शुड नो कि फंडिंग के बाद क्या करना है उस पैसे का। इफ़ी से एक और कट में आता है कि शुरुआती दौरों में कई सेलर्स को ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे वो दिखेंगे और जितने ज़्यादा एसक्यू रहेंगे उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। करेक्ट। सेलर्स को ये समझना चाहिए कि मार्केट प्लेसेज इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर हैंडलिंग, और हर एक मार्केट प्लेस एक हर एक इकोनॉमी अलग कंट्री की तरह बिहेव करता है। हर प्रोडक्ट हर जगह नहीं चलेगा, सबके अपने अपने करेक्ट। प्राइसेस हैं। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने एसकेयूज रखने चाहिए? बाइक बहुत। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, और कितने मार्केट प्लेसेस पे, कि सारे मार्केट प्लेसेस पे आपको ऑनबोर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है क्या? द आंसर इज नो। मार्केट प्लेसेस में आपको पहले एक के ऊपर आप अपने आप को अच्छे से स्टार्ट हो। दैट इज व्हेन यू गो टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और सबके अपने अपने न्यूएंसेस हैं। सारे मार्केट प्लेसेस बहुत डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। होता क्या है कि इट इज़ समटाइम्स इट इज़ ईजी टू ऑनबोर्ड ऑन टू प्रीमियम मार्केट प्लेसेस, जैसे आपका मिंत्रा हुआ या नाइका हुआ। आज के समय में क्विक कॉमर्स पे ऑनबोर्ड करना
So fortunately we are onboarded on Blinkit, Swiggy, Pepto, हम सब पे onboarded हैं. बट उन सब के भी अपने अपने चैलेंजेस हैं. ये एक्सपेक्ट करना बिकॉज अ प्रोडक्ट इज अ विनर यहाँ पर, सो ये प्रोडक्ट बाकी मार्केट प्लेसेस पे भी विनर होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है. जैसे कोई प्रोडक्ट अगर आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अच्छा चल रहा है, चांसेस आर कि वो बैंगलोर में अच्छा चले, बट ऐसा नहीं है कि वो दैट्स ऑलवेज ट्रू. वैसे ही जो प्रोडक्ट आपका अमेजोन पे चल रहा है, इट इज़ नॉट ट्रू कि वो मिंत्रा पे भी आपका बेस्ट सेलर या विनर बनेगा. तो जैसा आपने बोला वह भाई, होता क्या है कि वो लगता है बहुत आसान है कि चलो यार सब जगह लिस्ट कर लेते हैं, सब जगह ऑनबोर्ड हो जाते हैं. मान लो मेरा 25 लाख रुपए का रेवेन्यू है, वो सब पे ऑनबोर्ड हो जाएंगे तो 25 लाख रुपए और आज 50 लाख रुपए का रेवेन्यू. बट उस समय कैलकुलेशन नहीं हो पाती है जी. कि मेरे को लिस्टिंग कराने में कितनी कॉस्ट लगी. ठीक जी. है, मतलब हो सकता है आप उसको बोलें बहुत छोटी कॉस्ट है, बट उसको मैनेज करने में आपका टाइम जा रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस बढ़ गया. अब आपको अपने वेयर हाउस में भी लोग चाहिए उस चीज़ के लिए कि पैकिंग हो रही है रेगुलरली, ये सब. तो सजेशन ये रहेगा, एक मार्केट प्लेस, एक कैटेगरी, एक सब कैटेगरी और कुछ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके पहले सक्सेस को टेस्ट करिए, बेस्ट सेलर्स बनाइए, अमेजॉन चॉइस बैच लीजिए, मल्टीपल उसको इन्वेंट्री को आप मल्टीपल स्टेट्स में एफबीए के थ्रू भेजिए. जब ये सब कर लें और ऐसा लगे कि आप अच्छा एक रेवेन्यू हिट कर रहे हैं और आपका या तो मैनेजर, या चाहे वो पेड हो चाहे ऑर्गेनिकली आपको मिल गया हो, आप वो बोले कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस दिन आप समझिए कि आपने अच्छा करना शुरू कर दिया. बिल्कुल आई गेस दैट शुड बी द बेंचमार्क. 100%. और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. और हाँ, सो हम्म. आपने बिल्कुल ठीक बोला अनुपम भाई. और इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है कि आप जितने ज़्यादा चैनल्स पे जाएंगे, आपका कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज जो होता है, हर करेक्ट. जगह इन्वेंट्री रख के उसके ऊपर करेक्ट. की मार्केटिंग करके जो आपका पैसा ब्लॉक होता है, वर्किंग कैपिटल शॉर्टफॉल इज द बिगेस्ट किलर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस. और वो आपको कैसे उस चर्न को, साइकिल को मेंटेन इतने हेल्दी तरीके से रखना है कि पैसा, क्योंकि आप कभी भी माल बेचते हैं, आपको पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर पैसे आपको कुछ दिनों के बाद में आते हैं, वो भी कट कुटा के. कोई आपको 10 दिन में दे रहा है, कोई आपको 50 दिन में, कई कुछ प्लेटफॉर्म्स 45 दिन में भी करेक्ट. पैसा नहीं देते. तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वरना ये वर्किंग कैपिटल शॉर्टफॉल आपके बिजनेस को पूरा खा जाएगा. सो होता क्या है कि जब ई कॉमर्स सेलर शुरू हो रहे होते हैं छोटे, वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते. ऑनेस्टली वे भाई, आई डोंट वांट टू शाई अवे सेइंग कि यार हमारे लिए भी ये सब डिफिकल्टी रही हैं, एंड सूनर और लेटर हमें भी ओवरकम करना पड़ा. हमने भी यही किया था, हम सारे चैनल्स पे चले गए थे. हमें फिर अपनी कैटेगरीज, हमें अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बहुत लिमिट करना पड़ा. कोई भी बहुत बड़ा जो सेलर होगा ना, अगर आप देखेंगे 80-20 पेरेटो रूल जो चलता है, वो 20% ऑफ द प्रोडक्ट ही जो है वो उसका 80% ऑफ द रेवेन्यू ला रहे होते हैं. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी, वापस प्रॉफिटेबिलिटी किन प्रोडक्ट से आ रही है. रेवेन्यू के ऊपर मत फोकस करिए, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करिए कि किससे आ रही है. इस कैटेगरी में मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ, किस सब कैटेगरी में और किस प्रोडक्ट में मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हूँ, वही आपके विनर्स हैं. अब मान लीजिए आपकी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर केवल मान लीजिए आपने साल महीने भर काम किया और आपको मान लीजिए 2 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ. अब आप बोलते नहीं यार 2 लाख रुपए में तो काम नहीं बनता, अपने को 10 लाख रुपए कमाने हैं. जी. बहुत बढ़िया. नए प्रोडक्ट को टेस्ट करिए. अगर आप मान लीजिए शॉपिफाई के थ्रू करते हैं तो एक सीओडी वाली साइट चला के नए प्रोडक्ट को टेस्ट कर लीजिए. आपको पता चलेगा कि कॉस्ट पर परचेज कितने की आ रही है, ये प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है. अगर मान लीजिए आप केवल सेलर वाला काम कर रहे हैं और ब्रांड बिल्डिंग वाला काम नहीं कर रहे, अगर मान लीजिए आप ब्रांड बिल्डिंग वाला काम कर रहे हैं, तो अपनी पूरी रिसर्च करिए. देखिए वो प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है, फीचर क्या लेके आ रहे हैं आप, क्या कलर है, क्या बॉडी है, क्या चीज़ है उसकी, हर चीज़ को देखिए. अगर आपको लगता है वो प्रोडक्ट विनर बन सकता है, उसको लॉन्च करिए. बहुत सारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में. और उसके बाद कोशिश ये करिए कि 2 लाख की जगह अब आपको कितने और प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, विनर ढूंढने पड़ेंगे. अपनी एक फनल बनाइए. प्रोडक्ट लॉन्च टू कितने विनर्स मुझे मिले, मैं कितना नंबर ऑफ ऑर्डर पे कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ. तो आप वो 10 लाख रुपए की कैलकुलेशन रिवर्स में करके मुझे कितने प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, मेरा परसेंटेज ऑफ विनर कितना मिल रहा है, उससे आप बेसिकली प्लान कर सकते हो कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इतनी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. थैंक यू जी. सो मच फॉर दोज इनसाइट्स. एब्सोल्युटली वंडरफुल. आई एम श्योर कि जो भी लोग सुन रहे होंगे उनको बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे अपने बिजनेस के लिए, एंड इफ दे कैन टेक इंस्पिरेशन एंड श्योर. वर्क अकॉर्डिंगली.
So Anupam, we'll just हाँ, do a quick rapid fire round जहाँ पे आपसे श्योर 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी पहले दिमाग में आए आप उसका आंसर दीजिएगा। जी। So सबसे फेवरेट प्रोडक्ट आपका कौन सा रहा है, होली बुक स्टैंड। उसके बारे में कुछ बताइए। एक बुक स्टैंड जिसमें आप अपनी होली बुक्स को रख सकते हैं सेफली एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग एक प्रोडक्ट है जो कि आप सीनियर सिटीजन्स को, मतलब जो आपके नानी दादा दादी हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। सबसे बेस्ट रिव्यू जो आज तक आपको मिला है किसी कस्टमर से। मेरी एक कस्टमर हैं जो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस आए में उन्होंने हमसे कुछ प्रोडक्ट लिए थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी लिए, बेटे के लिए भी लिए, पोती के लिए भी लिए। शी कंटिन्यूसली कीप ऑन बाइंग फ्रॉम अस। वी फॉलो गुरुजी एंड every single day from almost like 2 years or so, we actually wish each other Jai Guruji. So that is the kind of connection I have with my customers. एक ऐसे ही हैं, लास्ट आई रिमेम्बर वो कि 18 बार वो हमसे परचेज कर चुके थे एंड शी कंटिन्यूसली जैसे ही कुछ आता है शी कीप्स ऑन परचेजिंग। Awesome. So एक ऐसा टूल जिसके बगैर आप या आपकी टीम नहीं रह सकते हैं। I guess my calendar, which is basically well scheduled from Monday to Friday, and I cannot live without it. कोई ई कॉमर्स का टूल जो आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, हाँ, Facebook ad library. और मार्केट प्लेस या शॉपिफाई? I have my own opinion, but marketplace because वहाँ पर demand already generated है। एंड आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि अगर आप शांत हैं किसी भी सिचुएशन में तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी है, आप सक्सेसफुल हैं। सो केवल आई सी एज इन लाइक माई अर्ली डेज ऑल्सो वेरी हेक्टिक, just trying to prove myself or just make a lot of money. That is not success. आपको पैसे मिल भी जाएंगे, अगर आप शांत नहीं हो मन से तो वो सक्सेस नहीं है। Perfect. Thank you so much, Anupam, for your time and lovely chatting with you. Same Thank here, Vaibhav bhai. Thank you so much. Pleasure. Thank you.